Assalamualaikum. Myself Farida Anjum. I am going to teach you computer science paper first of 12th standard. So dear students, first of all I welcome all of you in my first video. So first we have to know our syllabus. So let's look on it. As you can see in index, there are 4 chapters are there. First one is operating system, which is having 22 marks. Second chapter is data structure, which is having 17 marks. Third chapter is C++, which is having 41 marks. And the last chapter is HTML, which is having 14 marks. Now let's look on the distribution of marks question wise and topic wise. You can take a screenshot of this page, so you can get the idea, clear the idea about how many questions are there, how they can be asked in different chapters. Now I am going to teach you the HTML lesson. As you can see on the screen, H stand for hyper, T stand for text, M stand for markup, and L stand for language, that is hyper, text, markup, language. So the full definition of HTML is hypertext markup language, which is used to create World Wide Web document. World Wide Web is the full form of WWW. So what is WWW? WWW is nothing but it is used to connecting the peoples, you can see in this image, and it is also connecting the computers over all the world. Now let's look. The definition of the HTML is divided into two parts. First one is hypertext. Hypertext is nothing but an ordinary text with extra features such as formatting images, multimedia, and links to other documents. Hypertext markup, these are the two words of a definition of HTML. So हाइपरटेक्स्ट एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम टेक्स्ट को कर सकते हैं, इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ऐड कर सकते हैं और लिंक ऐड कर सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑल ऑफ दिस. सो नॉर्मल टेक्स्ट जैसे आप इस बुक में देख सकते हैं कि ये जो बुक है इसमें जो भी लिखा हुआ रहेंगे नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें कोई किस्म की आपको लिंक नहीं मिलेंगे. अब ये टेक्स्ट हाइपर कैसा बन जाता है, जैसे इस इमेज में देखेंगे आपको जो भी रेड कलर के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ लिंक. व्हेन वी क्लिक ऑन दिस रेड ऑप्शन वी गेट एन अनदर पेज. अगेन वी गेट एन अनदर पेज व्हेन वी क्लिक ऑन एनी रेड ऑप्शन. मीन्स द रेड ऑप्शन इज हैविंग अ hyper text. Again an example of hypertext, this is a home page which is also having two links. When we click on this we will get another page, when we click on this we will get another page, and so on. All the pages are linked with each others. This is called as hypertext. जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर में या मोबाइल में हम नेट सर्फ करते हैं तो कोई एक वर्ड ऐसा आता है, नेक्स्ट ईयर, ये विकीपीडिया आपको एग्जांपल में दिख रहा है, जब हमारा माउस हम उसके ऊपर लेके जाते हैं तो ऐसे ही माउस जो पॉइंटर रहता है वो हमारा हैंड टूल में चेंज हो जाता है. सो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा एक नया पेज ओपन होता है. तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हाइपर टेक्स्ट है. जो भी टेक्स्ट पर हमारा माउस पॉइंटर हैंड टूल में चेंज हो जाता है और वहाँ पर हम क्लिक करके हमें नया पेज ओपन मिलता है, उसे हाइपर टेक्स्ट कहते हैं. Now the second part of the definition of HTML is markup. What is markup? Markup is nothing but the process of taking ordinary text with and adding extra symbols such as editors proofreading symbols. एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट है जिसके अंदर सिम्बॉल्स ऐड किए जाते हैं. अब सिम्बॉल्स मीन्स व्हाट? As you can see in this example, this is our raw content, and we have to
we had to convert it into HTML. So you can see that so many symbols are there, H1, P. Okay, these are the symbols which tell the browser how to display the web page. Now, what is tag? Tag is a single unit of markup. It is a set of symbols defined in HTML to have a special meaning. टैग जो है एक सिंगल यूनिट ऑफ मार्कअप होता है. इट इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ सिम्बॉल्स जिसके स्पेशल मीनिंग होता है. और ये सिम्बॉल्स वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि आपका वेब पेज किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए. अब ये टैग हम किस तरीके से लिखेंगे, व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड टू राइट अ टैग इन अवर HTML. So the tag is start with this sign and end with this sign. These symbols together known as angle bracket. तो ये दोनों symbols के साथ में लिखने पर tag create होता है और इसे angle bracket कहते हैं. What are the types of tag? There are the two types of tag. First one is start tag. It is used to begin an effect. कोई effect को बिगिन करने के लिए ये स्टार्ट टैग यूज़ करता है, और जो टैग स्टार्ट हुआ उसे एंड करने के लिए या उस इफेक्ट को एंड करने के लिए एंड टैग इस्तेमाल किया जाता है. और नेम ऑफ एंड टैग और नेम ऑफ स्टार्ट टैग शुड बी सेम, बट द एंड टैग इज प्रेसिडेड बाय अ फॉरवर्ड स्लैश. लेट्स लुक एट एग्जाम्पल. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, दिस इज अ बी टैग sample slash b tag in and sentence. This is a opening tag and this is a closing tag. एंगल ब्रैकेट के साथ लिखा गया है ये ओपनिंग टैग, और क्लोजिंग टैग भी एंगल ब्रैकेट के साथ लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया गया है. इट मीन्स इट इज़ अ क्लोजिंग टैग और वी कैन से एंड टैग. और इसके अंदर बी टैग के अंदर हमारा एक वर्ड लिखे हमने सैम्पल. Means we want to give an effect of bold to this word only. So let's look on the output. This is a sample sentence. तो इस आउटपुट में हमको ये देखने को मिलेगा कि सैम्पल ये जो वर्ड है ये सिर्फ बोल्ड फॉर्म में अपीयर्ड हुआ है, और अदर वर्ड्स जो है वो सिंपल सेंटेंस है, हमारे सिंपल वर्ड है. नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ राइटिंग HTML लैंग्वेज. अभी तक हमारा सिर्फ डेफिनेशन पर कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ है. अब अगर हम HTML लैंग्वेज को क्रिएट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है. तो सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट है कि इसकी कोडिंग लिखने के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट एडिटर चाहिए, जस्ट लाइक नोटपैड, वर्डपैड. जैसे आप देख सकते हैं ये नोटपैड, इट इज़ ऑलरेडी इनबिल्ट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. वी डोंट नीड टू बाय एनी स्पेशल लाइसेंस सॉफ्टवेयर. So the cost of the HTML language is nothing. Now how can we see our output? For output it required any web browsers like Chrome, Safari, UC browser, Firefox, Internet Explorer, etc. Now come to the point, what is structure of HTML web page? HTML web page लिखने का तरीका क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो अब हम देखेंगे. As you can see, the first tag is HTML. HTML जब हम नोटपैड में फर्स्ट टैग लिखेंगे, it indicates that this is a web page is written in HTML. तो ये वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML पेज है या ये एक वेब पेज है जो HTML में लिखा गया है. हेड, टाइटल टैग कंटेन्स द वेब पेज ऑफ द टाइटल. अब हम हमारा टाइटल क्या देना चाहते हैं, तो टाइटल बार जो हमारा होता है, वो टाइटल बार के अंदर ये टाइटल टैग की मदद से हम टाइटल बार दे सकते हैं. हेड टैग जो है वो कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब. नेक्स्ट टैग इज बॉडी टैग विच कंटेंट ऑफ द वेब पेज. यानी एक्चुअल कंटेंट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट इज रिटर्न इन बिटवीन द ओपनिंग बॉडी टैग एंड क्लोजिंग बॉडी टैग. ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में हमारा एक्चुअल कंटेंट ऑफ द पेज रहता है. जितने भी टैग्स हमको, जितने भी इफेक्ट्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस जो भी हमें पुटअप करना है हमारे वेब पेज में, ये ओपनिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग बॉडी टैग के बीच में लिखा जाता है.
और ये क्लोजिंग HTML है कि एंड ऑफ द वेब पेज हमारा हो चुका है। सिंपल, हाउ टू क्रिएट एंड रन सिंपल HTML फाइल। So first we have to start our computer system, then click on the start button and a list is appeared and we have to choose notepad। कंप्यूटर सिस्टम ऑन करना है, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना रहेगा। स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिस्ट आपके सामने अपीयर हो जाएंगी, इसमें से आपको ये नोटपैड इस ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नोटपैड की विंडो आपके सामने ओपन दिख रही है। ये क्लोज बटन है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर बटन है, ये मिनिमाइज बटन है। दीज आर द मेनू बार, ओके, दिस इज द टाइटल बार। This is a simple program which I have written on the notepad. The first thing I have to write HTML, head, title, closing head, body tag। बॉडी टैग में मैंने एक H1 हेडिंग टैग इस्तेमाल की हूँ जिसमें बॉडी ऑफ वेब पेज लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ पेज लिखा हुआ है। जो भी टैग हम ओपन करते हैं उसे क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जो फर्स्ट टैग है जो ओपन हुआ वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। Next we see the output, how to save the HTML file। तो we have to click on file menu, a drop down list is appeared, we have to choose save option, click on the save button, then we saw a dialog boxes, this dialog box is appeared on the screen। Next we have to write the file name। It is a very important part of HTML because if we want to create a web page, so we have to write the extension। So my first HTML is the name of my file and the .html is the extension of file। just like this, जैसे हम वर्ड की फाइल देखते हैं तो .doc उसका एक्सटेंशन होता है, पावर पॉइंट की फाइल देखते हैं तो .ppt होता है। ऐसे ही जब हम वेब पेज बनाते हैं तो उस पेज को जब नोटपैड में हम कोडिंग टाइप करते हैं और जब हमारी फाइल सेव करते हैं तो जो भी हम नाम यहाँ देंगे उसके नाम के बाद .html या .htm ये हमें टाइप करना बहुत ज़रूरी है। ये टाइप करने के बाद हमें इस सेव ऑप्शन पे हमें क्लिक करना रहेगा। जैसे ही हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारी फाइल सेव हो जाएंगी और ये डेस्कटॉप के ऊपर ये आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगी। ये तो वी हैव टू क्लिक ऑन माय फर्स्ट HTML। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फाइल क्रोम में बन चुकी है क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र सेटिंग में किया हुआ है। आपके कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउज़र रहेगा वो उसकी फ़ाइल यहाँ आपको बना के दे देगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे ये वेब ब्राउज़र का ये वेब पेज हमारा बन चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बॉडी ऑफ पेज ये हमने बॉडी टैग में लिखा हुआ था तो वही चीज़ हमारे वेब पेज पर अपीयर हुई है। और ये हेलो हमारे टाइटल टैग में इस्तेमाल किए थे हमने, तो ये हेलो आपको ये टाइटल बार में दिख रहा है और बॉडी ऑफ पेज ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ था ये हमें यहाँ दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।